Hello, my dear friends and students. I welcome you again on my YouTube channel, Education for Innovation. In the previous video, we have discussed about the data type and the print command. Okay, and this is the last point of the programming fundamental. And in the CS, you have topic that is data handling. Okay, data handling in Python, and in the IP, it is the topic is programming. It is the part of programming fundamental. Okay, टॉपिक इज कम्प्लीटली सेम जस्ट टॉपिक का नेम डिफरेंट है बाकी और कोई चेंज नहीं है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक operators in python operators in the introduction video I have we have created one program addition of two numbers and one program for to perform the arithmetic calculations in which we have used plus minus multiplication sign division and power symbol. Okay, we have used these symbol. What are these? These are the symbols and these are known as operators. We have different type of operators in the Python programming language, but before starting the type of operators, just see the definition of operator. Operators, if we see, these are the symbols. Sometimes these are the collection of alphabets also. Okay, so operators, if we see the complete definition of the operator, operators are the symbols or words that perform a specific task when we apply it on the data, and the data on which operators are applied are known as operand. This definition we have covered in the part of tokens also in the previous video. Okay, now in the Python we have total 6 type of operators. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीजर डिवीजन पावर ये सारे सिंबल्स आ जाएंगे. ये why these are the arithmetic operator? Because these are used to perform mathematical calculations. That's why these are the arithmetic operators. Okay, now second is the relational operator. As the name suggests, relational operator, these operators are used to find out relation between two numbers and two objects. ओके लाइक दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? नंबर ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है. सो in the relational operator we have less than, greater than, equal to, less than, equal to operator. These are the relational operator. Then basically relational operators are used to provide condition. We will discuss it later. Now the logical operators, we have 3 logical operators, basically and, or, not. Okay, then bitwise operator, bitwise we have bitwise and, bitwise or, bitwise not, bitwise XOR. Okay, बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की वर्किंग एक जैसी है, बट बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है, बिट्स के ऊपर 0 and 1 बिट्स जो होती है उनके ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं सीधा. ओके, देन द आइडेंटिटी ऑपरेटर, इफ यू वांट टू चेक द एड्रेस, बेसिकली इट्स बिलोंग टू द एड्रेस. आइडेंटिटी, क्या वो जैसे दो ऑब्जेक्ट है, क्या वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या नहीं है, उसके लिए हम यूज में लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. ओके, देन द मेंबरशिप ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर इज ऑपरेटर होता है. आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा है? इज ऑपरेटर है. और मेंबरशिप ऑपरेटर, वी हैव 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन. मोस्टली सिक्वेंशियल जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके अंदर हम उसके लिए यूज में लेते हैं. यदि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसके अंदर उस पर्टिकुलर लिस्ट, जैसे एक लिस्ट है उसके अंदर 1 to 10 नंबर्स आपने स्टोर करवा रखे हैं, अब आप उसको चेक करना चाह रहे हो कि नंबर 5 है, क्या वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, उसकी मेंबरशिप को चेक करना चाह रहे हो, उसके लिए हम इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज में लेते हैं. ओके, वी हैव दीज 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन. हर एक ऑपरेटर का डिफरेंट टास्क है, हर एक ऑपरेटर का डिफरेंट यूज है. ओके, वन बाय वन उन सभी की बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द टाइप ऑफ ऑपरेटर, I want to discuss category of the operator. See, these 6 type of operators are categorized in 3 different categories also. Like in that part of token, when we are doing tokens, I have written there a plus b, in which plus is the operator and a and b are the operands. Okay, then in each programming language, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये होते हैं ऑपरेटर्स. ओके, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक पर्टिकुलर ऑपरेटर है, उसको कितने ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे प्लस ऑपरेटर है, इसको एक लेफ्ट हैंड साइड में भी रिक्वायर है और एक राइट हैंड साइड में भी रिक्वायर है, 2 ऑपरेंड्स ही है.
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, काफी सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको केवल एक, ओनली वन ऑपरेंड रिक्वायर होता है, only one operand is required. Such type of operators are known as unary operator. Okay, unary operator which require only one operand, binary operator which require two operands. Okay, देन एक ऑपरेटर और होता है स्पेशल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। मोस्टली सी प्लस प्लस एंड जावा के अंदर, सी के अंदर यूज में लिया जाता है। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन यहाँ पर आएगी, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा, वो एग्जिट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा। तो कितने, थ्री स्टेटमेंट्स हो गए, थ्री ऑपरेंड्स हो गए, three operands are required. So if any operator will require three operands, it will be considered as a ternary operator. Okay, so these six type of operators can be categorized in three parts according to their required operands. These are the unary, binary, and ternary. Okay, now let's begin with the arithmetic operator. As the name suggests, arithmetic calculations को perform करने के लिए हम arithmetic operators use में लेते हैं. Then we have two unary arithmetic operator and five binary operator. Okay, sorry, seven arithmetic operator, seven binary arithmetic operator and two unary operator. Seven कौन कौन से हो गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन दिस इज द इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन भी बोल सकते हैं, इंटीजर डिवीजन भी बोल सकते हैं। देन वी हैव star sign, two star sign for the power, and we have modulus operator. So these are the seven arithmetic binary operator are used to perform mathematical calculations. And we have two unary operator. Unary operator दो है हमारे पास में, एक तो है प्लस और एक है माइनस। ये प्लस और माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर बोल रहा हूं मैं, और यहाँ पर जो प्लस और माइनस है ये बाइनरी ऑपरेटर। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसके पीछे रीजन क्या है। लाइक इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर 10 + 5, क्या करते हैं, दो ऑपरेंड, इस प्लस के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में ऑपरेंड है, तो ये क्या हो गया, बाइनरी। लेकिन सपोज दैट मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको -10 वैल्यू असाइन करवाइए, तो आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, a = -10। तो ये वाला जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, साइन ऑफ द नंबर। यदि आपने माइनस नहीं लगाया तो क्या मतलब हुआ इसका, एक क्या है, +10 है, +10 है। सो ये जो सिंबल है, ये माइनस और ये प्लस, इनको केवल एक ही वैल्यू रिक्वायर है। जैसे आपने किया +10 या फिर -10, ये क्या है, ये प्लस पॉजिटिव नंबर 10 है और ये नेगेटिव नंबर 10 है। ओके, सो ये जो प्लस और माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, साइन ऑफ द नंबर। सो द यूनरी ऑपरेटर, वी हैव टू यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। these two operators are used to indicate sign of the number। बाकी आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये तो सभी यूज में लिए हुए हैं ही। यहाँ पर एक और है, एक नई चीज आप लोगों के सामने जो आ रही है वो है फ्लोर डिवीजन। जैसे a की वैल्यू 5, आपके 5 डिवाइड बाई यदि 2 करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 2.5 डेसिमल में रिजल्ट आएगा। बट यदि हमने 5 इंटीजर डिवीजन 2 किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा ओनली इंटीजर पार्ट में आएगा 2, इसको हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, सी इन द स्लाइड वी हैव 7 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कवर हो चुका है। सी दिस इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के, यदि आपको कोई डाउट है तो भी। जैसे यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल में देखिए हमने a की वैल्यू 20 ले रखी है, b की वैल्यू 6 ले रखी है। दिस इज द एडिशन, subtraction, multiplication, division, then this is the floor division। see the result, एडिशन 26 आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवीजन देखिए, हमने स्लैश साइन यूज में लिया, दोनों ही इंटीजर डेटा थे 20 और 6, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। ओके, बिकॉज दिस इज द डिवीजन ओनली। ओके, ये आंसर जो आपका देगा वो हमेशा किस में देगा, फ्लोटिंग वैल्यूज में देगा, फ्लोट में देगा। अब देखिए नेक्स्ट में फ्लोर डिवीजन का देखिए, जिसको हम इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। डबल स्लैश साइन, डबल स्लैश साइन किसका है, फ्लोर डिवीजन का है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आया वो डिवीजन का जो रिजल्ट है उसका इंटीजर पार्ट आएगा, ओनली 3। ठीक है, अब
ये जो परसेंटेज साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ द नंबर। सो 20 मॉडुलस 6, तो 20 को आपको डिवाइड करना है 6 से, 3 टाइम हुआ डिवीजन, रिमाइंडर क्या बचा 2, सो दिस रिमाइंडर विल बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज साइन। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। देन एक्सपोनेंट ए पावर बी, ए पावर बी यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास में एक्सपोनेंट सिंबल है। जैसे आपको 2 पावर 3 फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू 3 करेंगे। ओके, सो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 ओके, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सो द रिजल्ट विल बी 8। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ 20 पावर 6। कैलकुलेट करते रहिए, रिजल्ट यही आना है। ओके, so this is the arithmetic binary operator. Okay, now अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर यदि हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यूनरी ऑपरेटर क्या करते हैं। दो हमारे पास में यूनरी ऑपरेटर हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, जो इंडिकेट करते हैं आपका नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एक सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर हमारे पास में एक टॉपिक हुआ करता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जनरली हम हमारी एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a इक्वल टू ए प्लस 5, इसको आप शॉर्ट हैंड में a प्लस इक्वल टू 5 भी कर सकते हो। तो ये सेम चीज हम पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, सी जैसे हमने किया a इक्वल टू ए प्लस बी किया, a इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस इक्वल टू बी भी कर सकते हो। इसी तरह से जितने भी हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आप उन सभी के लिए ये चीज कर सकते हो। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स कैलकुलेशंस की बात हो रही है, तो ये सभी क्या है, ये सारी शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशंस है, आप इनका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में भी इसको यूज में ले सकते हो। ओके, मोस्टली जब हम व्हाइल लूप यूज में लेते हैं उस केस के अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? After the arithmetic operator, let's move to the second type of operator, that is relational operator. Relational operators, we have greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, and not equal to. These are the relational operators. Okay. Basically, relational operators are used to compare two objects. Like suppose that we have two numbers. If we compare between the two numbers, then maybe the numbers number, suppose that one is the 10 and second is 20. So the number may be from the one number with the another number, maybe it is the greater than number, it is less than number, it may be the equal, it may be not equal. Okay, we can compare any string, any list, any tuple with the help of relational operator. Basically, relational operators are used to provide conditions in the if statement or in the looping statements. Okay, if you want to compare some object, if you want to provide conditions in the program, then we use relational operator. And mostly any expression that contain relational operator will return the result in the true or false with the true and false data. Okay, most of them, not all, because sometimes we have different type of expressions that will return arithmetic results also. It's depend on the which operator we have used with the operands. Okay, so if we see the relational operator, these are used to compare two values. Let's see the definition. And in the Python we have 6 operators. These are the greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, and not equal to. Okay, and basically these are used to compare two variables, as I earlier told you, and most of the expressions will return either true or false value. Okay, now see in this example, see in this screenshot, a is 10 and b is 20 here. So if I write, all of you know, if I write a greater than b, so the 10 is greater than 20, condition is false, so it will return false. In the boolean, f is capital, false, f is capital, and in the true, t is capital. Okay, and if I write print a equal to b, then again it will return false because 10 is not equal to 20. If I write a not equal to b,
it will return true. C, T is capital. Okay, now in the next one, this is very important thing. See this one, 10.2 and it is greater than what? 5.1 plus 5.1. 5.1 and 5.1. It will return 10.2. So it will return false. Okay. Now ABC equal to capital ABC will return false. How? Now here see, this is the small ABC and it is equal to capital ABC. This is the data. In the string comparison, if we see, so in the string each character has the index value. So zero index value characters will, जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला जो करेक्टर है वो जीरो इंडेक्स वैल्यू के करेक्टर से कंपेयर होगा, वन इंडेक्स वाला वन से होगा, सेकंड इंडेक्स वाला सेकंड से होगा. ओके, सो स्मॉल ए कंपेयर होगा आपका कैपिटल ए से. नाउ इट विल कंपेयर the ASCII values of the character. If we see the small a ASCII value, it is 97 and capital A is 65. So 97 and here 65. So both are not equal. Okay, and here we are using equal to operator, that's why it will return false. Now small abc, again small abc is greater than capital ABC. Okay, so it will compare the first alphabet 97 and second alphabet is 65. So it is, and then after that 98 is greater than 66 for the capital C, and for the small c it is 99 is greater than 67. So the first condition is true, so it will return true. So in the string if we use relational operator, it will compare each character, each corresponding character, हर एक इंडेक्स वैल्यू का जो करेक्टर होगा वो दूसरे वाले इंडेक्स वैल्यू के करेक्टर से कंपेयर होगा. ओके, देन डेसिमल वैल्यूज के बीच में भी कंपैरिजन पॉसिबल है, इंटीजर डेटा के अंदर भी कंपैरिजन पॉसिबल है. ओके, बाकी जब आप प्रोग्राम्स यूज में लोगे तो और ज्यादा क्लियर होता रहेगा. ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर आउटपुट फाइंड आउट करना पेपर में आ सकता है. Okay, now if we revise again the relational operators are used to compare two objects, two values. Okay, and it gives the result in the boolean type, that means it will return either true or false value. All right, now the next point, the next is logical operators. We have three logical operators, and, or, not, and these operators basically are used to combine multiple conditions together. Like suppose that you want to find out maximum number between three numbers. Suppose that we have three numbers, the numbers are a, b and c, and I want to check whether the a is maximum, b is maximum, or c is maximum. So what we have to do, we have to write a is greater than b if the value of a is greater than b and value of a is greater than c. If both conditions are true, that means a is maximum. Right now, so if I want to compare this condition number one and second condition, then we have to use logical operators. Okay, if I will require all the conditions true, in that case we use AND operator. Okay, if we will require only one condition true, in that case we use OR operator, and if you want to reverse the result of expression, then we use NOT operator. Okay, we have three logical operators. Okay, so the logical operators are used to combine multiple conditions together. Okay, and to definitely to create multiple conditions means if you want to create complex conditions in the program, we use logical operators. Okay, we have three logical operators. These are the AND, OR, NOT. If you see the working, and it has one interesting factor also, the logical operators. We will discuss it here. Now, the first thing is the OR operator. The OR operator, see the truth table of the OR operator, directly see that. OR operator is used to combine multiple conditions together, and in the multiple conditions, if only one condition is true, then in that case it will return true. काफी आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें काफी सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना है, और उनमें से यदि एक भी कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करती है तो आपका रिजल्ट वो ट्रू में दे.
सो इसमें यहाँ पर देखिए ए एंड बी क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। तो ये दो कंडीशन है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दैट इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यदि आपने ए और बी लिया है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में आपने और ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है। तो यदि पहले वाली कंडीशन, ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई, यदि ये दोनों ही फॉल्स हैं तब तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यदि इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या देगा, ये ट्रू देगा। यदि एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो भी ये ट्रू देगा, और यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली ट्रू ही देगा। Okay, so this is the truth table of the OR logical operator. Okay, with the help of OR operator you can combine multiple conditions together. If the one condition is true, in that case it will return true. Okay, now the next is in the OR operator. In the OR operator, in the previous slide we have combined multiple conditions together, right now, but suppose that you have different values, like different values means, suppose that one side you have ABC or second side you have A greater than B, such type of things. So A greater than B, it will return either true or false value, maybe. Okay, but this things ABC, it never return any true or false value, right? So यदि आपने और ऑपरेटर के साथ में बूलियन टाइप का डेटा यूज में नहीं लिया है तो उस केस में क्या होगा, उसकी और बात करते हैं। देखिए उस केस में क्या होता है, हमारे पास में जो ये ए है, ये भी हम ये मान के चलते हैं कि कोई ट्रू और फॉल्स डेटा, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई एक्सप्रेशन है जिसका ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई रिजल्ट आने वाला है, और ये भी कुछ होगा। ओके, ये जनरली ये क्या है, ये ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इन दैट केस देखिए ए और बी आपके पास में दो डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशंस है। अब यदि ए की वैल्यू भी फॉल्स वैल्यू है, वो फॉल्स वैल्यू का मतलब क्या होगा, यहां पर पहले तो उसकी बात करते हैं। ये जो फॉल्स वैल्यू है ये है क्या चीज, फॉल्स वैल्यू इंटीजर में 0, 0.0, नन, एम्पटी स्पेस, एम्पटी स्ट्रिंग, एम्पटी लिस्ट। ओके, ये सभी क्या है, ये फॉल्स वैल्यू है, ये सभी फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, ये सभी क्या कंसिडर किए जाएंगे कि ये फॉल्स वैल्यूज हैं। इनके अलावा यदि ए और बी के पास में कोई भी डेटा आ रहा है तो वो सभी किस में कंसिडर किए जाएंगे, वो ट्रूथ वैल्यू में कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि उन सभी के लिए क्या रिजल्ट एवल्यूट होगा, ट्रू आएगा। ओके, अब सपोज दैट ए की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स वैल्यू मींस ये 0 है, नन है, 0.0 है, 0 पॉइंट, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, एम्पटी कोई भी वैल्यू आ गई, यदि वो फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है आपकी, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, उस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी रिटर्न होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी और ऑपरेटर में हमने दो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड कर रखी हैं तो हमेशा जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आएगी रिजल्ट में। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट वाले की। देखिए पहली वाली वैल्यू फॉल्स वैल्यू है और दूसरी हमें इसके इनपुट में ट्रूथ वैल्यू मिली हुई है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले तो मिल गया 0 और दूसरा मिल गया एबीसी। तो 0 क्या है, ये तो फॉल्स वैल्यू है, और एबीसी क्या है, ट्रूथ वैल्यू है। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, एबीसी को रिटर्न करेगा, ये चीज है इसमें, तो वैल्यू ऑफ बी विल रिटर्न। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू यदि ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर देगा, यानी कि इस बार इसका रिवर्स कर दीजिए, एबीसी इस साइड है और 0 इस, ये इस ऑपरेटर में एबीसी तो इस साइड आ गया और ये 0 इस साइड आ गया, तो क्या होगा, इसमें भी एबीसी रिटर्न होगा, बट ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी उस केस में। अब यदि दोनों ही ट्रू हैं उस केस में भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए रिटर्न होगा। ओके, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, और ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, सबसे पहला ये जो ऑपरेंड है ना ए, जैसे मैंने और ऑपरेटर में क्या दिया, ये तो ऑपरेंड 1 हो गया और ये ऑपरेंड सेकंड हो गया, पहले इस ऑपरेंड को हमेशा चेक करेगा, यदि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमेशा ये इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा,
भाई बी को ये चेक ही नहीं करेगा, ये कभी जाएगा ही नहीं बी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एरर फाइंड आउट करने में, आउटपुट फाइंड आउट करने में आ सकता है ये। यदि और ऑपरेटर आपने अप्लाई किया हुआ है दो वैल्यूज के ऊपर, उस केस में यदि ए के पास में जो ये जो एक्सप्रेशन है ए, इसके इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू की फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि ये ट्रूथ वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट हमेशा रिटर्न कर देगा ये ही। बी को ये चेक ही नहीं करेगा। अब यदि आपने इस बी के अंदर कहीं कोई एक्सप्रेशन रॉन्ग भी कर रखी है ना, तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना किसी एरर के, वो एरर इग्नोर हो जाएगी। इन द एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 10 इज लेस देन 200। क्या है, 10 लेस देन है 200 से, सो इट विल रिटर्न ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इसके आगे वाली एक्सप्रेशन को देखिए, हाई प्लस 20 ग्रेटर देन 30। सबसे पहली चीज, एक स्ट्रिंग डेटा है और दूसरा इंटीजर डेटा है, इन दोनों के ऊपर प्लस ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो सकता है, ये एक्सप्रेशन है कंप्लीटली रॉन्ग है। देखिए मैं इसको आपको आइडियली के ऊपर करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी आप लोगों के। ओके, देखिए क्या था, जैसे 10 इज लेस देन 200 और एक स्ट्रिंग लिया हमने, इसको हमने प्लस करवा दिया 20 और उसके ग्रेटर देन सपोज कर दिया 300 से। ओके, सो सबसे पहली चीज यदि हम देखें सिंटेक्स वाइज देखें तो हाई प्लस 20 ये चीज रॉन्ग है। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन कभी नहीं हो सकता है। ओके, बट इसके ऊपर ये जाएगा ही नहीं, ये पहले वाले एक्सप्रेशन को ही चेक करेगा और ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यदि आप ये ट्राई करो ना, यदि मैं ये ट्राई करता हूं प्लस 20, इट विल रिटर्न एरर, एरर शो करेगा डेफिनेटली। क्यों किया, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में एडिशन नहीं हो सकता है या ना ही कॉन्कैट हो सकता है। बट ये सेकंड वाली वैल्यू के ऊपर तो गया ही नहीं, इसने तो इसको चेक ही नहीं किया, इसने इसको तो चेक ही नहीं किया। इसको चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको पहले ही ये वैल्यू ट्रू मिल गई है, तो ये आगे जाने की ट्राई ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो आ गया, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ट्रू देन इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ ए, नेवर गो ऑन द बी। ओके, बी को ये चेक ही नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, अब यदि आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, चलो इंटरचेंज करके देखते हैं कि पहले वाली वैल्यू यदि फॉल्स आती है तो क्या होता है। अब यदि मैं इस चीज को इंटरचेंज कर देता हूं ना, तो ये एरर शो करेगा। जैसे इसको तो हमने फर्स्ट ऑपरेंड बना दिया और अप्लाई कर दिया हमने 20 इज लेस देन 200, इट शोज एरर। रीजन, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑपरेंड को चेक किया है। फर्स्ट ऑपरेंड में क्या था, हाई प्लस 20, और ये सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है, तो पहले वाले में, पहले ऑपरेंड में ही इसने एरर रिटर्न कर दिया, तो सेकंड वाले के पास जाने का मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं बनता है। क्लियर? So this is very important thing. If you are using or operator and if the first expression will return true, then in that case it will return value of a only. Okay, it never go for the second expression. Okay, second expression चाहे आपकी वो wrong ही क्यों ना हो, उसको वो चेक ही नहीं करेगा कभी भी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक क्लियर होगी ये बात। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, आपके पास में काफी सारी कंडीशंस है, उनमें से आपको एक कंडीशन ट्रू चाहिए, उसके लिए आपके पास में था और ऑपरेटर। अब काफी सारी कंडीशंस है, उसमें सारी की सारी आपको ट्रू चाहिए, यदि उनमें से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करे। ओके, उस केस में हमारे पास में है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर। सारी कंडीशंस, काफी सारी कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए हम यूज में लेते हैं। यदि सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, देन डायरेक्टली देखिए इसमें ट्रूथ टेबल को, A and B, again these are the two conditions only. Okay, if both are false then it will return false. Okay, यदि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों में से यदि एक भी फॉल्स है तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दो कंडीशन है, दोनों के दोनों यदि ट्रू हैं उसी केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, क्लियर है? लाइक मैंने किया था A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी A मैक्सिमम हो सकता है। इस टाइप की कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके लिए हम इसमें लेते हैं एंड ऑपरेटर।
ओके। बाकी जब हम इफ स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे, जब हम इफ कंडीशन के प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक बार के लिए वापस से देखेंगे, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हाउ टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द प्रोग्राम। ओके, नाउ अब बात करते हैं वही जो पीछे हमने और ऑपरेटर के अंदर बात की थी। यदि आपके पास में ट्रूथ वैल्यू है और फॉल्स वैल्यू है, तो इसमें कौन सी वैल्यूज रिटर्न करेगा? तो इसमें देखिए, जो ये टेबल बनी हुई है इसमें देखिए, यदि ए आपके पास में फॉल्स वैल्यू है, ओके, और बी के पास भी फॉल्स वैल्यू, तो हमेशा ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ ए रिटर्न करता है। यदि ए के पास में फॉल्स वैल्यू और बी के पास में ट्रू वैल्यू है, तो भी ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ए ही रिटर्न करेगा। इफ a is true and b is false, in that case it will return value of b। यानी कि अभी तक इसने क्या किया है, हमेशा फॉल्स वैल्यू को रिटर्न किया है। देन इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ट्रूथ, यदि ए की एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू और बी की भी ट्रूथ वैल्यू है, तो इस केस में ये क्या करेगा, ये बी वाली जो ट्रूथ वैल्यू है ये उसको रिटर्न करेगा। एक बार के लिए वापस से बता देता हूँ, फॉल्स वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, 0, 0.0, 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, नन वैल्यू हो गई, ठीक है, एम्पटी सीक्वेंस हो गया, ओके, एम्पटी स्ट्रिंग हो गया, ये सभी क्या है, ये फॉल्स वैल्यू बोलते हैं इनको हम, फॉल्स वैल्यू। इनके अलावा जो भी वैल्यू आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। तो जहां पर ये फॉल्स लिखा हुआ है ना, जहां पर ये फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इन सब वैल्यूज की बात हो रही है। जहां पर ट्रू लिखा हुआ है, इनके अलावा कोई वैल्यूज की बात हो रही है। अब पीछे हमने जो ट्रूथ टेबल देखी थी उसमें तो क्या था, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स और ट्रू, ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो या तो ट्रूथ वैल्यू देगी, ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए मैंने देखिए इस टेबल के अंदर एफ को स्मॉल लिया हुआ है, बाकी मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, यदि आपके पास में बुलियन वैल्यू है तो उसका टी कैपिटल है, ट्रू है, और यदि बुलियन फॉल्स है तो उसका एफ कैपिटल है। जबकि मैंने इन टेबल्स के अंदर स्मॉल एफ लिया हुआ है, इसके पीछे रीजन समझ में आ गया होगा कि ये फॉल्स वैल्यू और ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ओके, अब देखिए यहां पर जो और ऑपरेटर के अंदर बात थी, यदि आपकी पहली एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न, ए एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रही है, तो वो बी के ऊपर नहीं जा रहा है, यही था। इसमें भी ऐसा ही कुछ खेल है, बट थोड़ा सा अलग है इसमें, ठीक है। इन लाइंस को रीड कीजिए, द एंड ऑपरेटर फर्स्टली चेक द फर्स्ट ऑपरेंड, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन इट विल चेक द सेकंड ऑपरेंड। यदि पहला ऑपरेंड इसका ट्रू रिटर्न करेगा ना, तभी ये दूसरे वाले के पास जाएगा। यदि पहला ऑपरेंड ही फॉल्स है इसका, तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू ऑफ ए रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इफ 10 इज ग्रेटर देन 200, 10 क्या है, ग्रेटर देन है क्या 200 से, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, इस फॉल्स को रिटर्न कर देगा। यहां पर इस एक्सप्रेशन के ऊपर ये जाएगा ही नहीं, ये रॉन्ग है एक्सप्रेशन, हमें पता है, लेकिन इसको ये चेक ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीजन साफ साफ है, इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड फॉल्स, इफ इट इज द फॉल्स वैल्यू, देन इट विल रिटर्न दैट वैल्यू। ओके, सेकंड वाली वैल्यू को कब चेक करेगा, जब पहले वाली ट्रू है तभी सेकंड वाली के पास में जाएगा, अदरवाइज वो उसको चेक ही नहीं करेगा, चाहे उसमें एरर ही क्यों ना हो। एक बार के लिए वापस से इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो आप, जैसे हमने ये किया था, तो इसमें क्या था, पहले वाली एक्सप्रेशन ट्रू थी ना, ये लो एंड ऑपरेटर, ये पहले वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये सेकंड वाले के पास में जाएगा और ये क्या करेगा, एरर रिटर्न कर देगा। ओके, बट यदि इस एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर देता हूं, केवल एक सिंबल चेंज कर रहा हूं यहां पर, अब क्या है, पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन in the end operator, this is the binary operator, so it will require two operands. If the first operand will return false, in that case it will never go for the second express, second operand के ऊपर जाएगा ही नहीं, है उसका रिजल्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है। और यदि पहला ऑपरेंड ट्रू रिटर्न कर रहा है, उस केस में सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा, यदि वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू ऑफ बी रिटर्न करेगा, यदि फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू ऑफ बी रिटर्न करेगा। दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ बी रिटर्न होगी। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर।
नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपका जो भी रिजल्ट आता है उसको रिवर्स कर देता है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। इसमें एग्जांपल में देखिए, एक चीज और, ये यूनरी ऑपरेटर, इसको केवल एक सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर है। ओके, जैसे हमने किया नॉट 200 ग्रेटर देन 100, 200 ग्रेटर देन है 100 से, सभी को पता है, बट हमने यहाँ पर नोट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। नोट ऑपरेटर अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसका रिवर्स किया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, so it's all about the logical operators. We have covered here three logical operators. The first logical operator was the AND operator, sorry, first was the OR operator, then the second is AND operator, then third is the NOT operator. Okay, starting two are the binary operator, NOT is the unary operator. Now next is the bitwise operator. Bitwise operators ऑलमोस्ट आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह से हैं, बट ये बिट्स के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं, बाइनरी नंबर्स के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं। सो ये इंडिविजुअल जो बिट होती है उसको चेंज करने के लिए हम यूज में लेते हैं। एंड वी हैव 4 बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास में 4 हैं। दीज आर द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड के लिए हम एम्परसेंड साइन यूज में लेते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर, इसके लिए हम पाइप साइन यूज में लेते हैं। देन एक्सक्लूसिव और बोलते हैं इसको हम, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एक्सओर। ओके, देन द टिल्ट साइन हमने यूज में लिया हुआ है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के लिए। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर को कवर करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना है। वी इन द पाइथन वी हैव bin फंक्शन। bin एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक नंबर को इनपुट में लेगा और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड देगा। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास में बाइनरी नंबर्स होने चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि बिट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसे एवेल्यूएट करेंगे हम। ओके, सो यदि हम बिन ऑपरेटर्स की बिन फंक्शन की बात करें तो बिन फंक्शन की वर्किंग क्या होगी, कैसे उसको यूज में लेना है। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपने लिखा बिन, इसके अंदर आपने सपोज दैट कर दिया 14, तो बिन क्या करेगा, 14 का जो बाइनरी डिजिट होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब 14 का जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है आपको। ओके, लाइक 1 2 4 8, सो दिस इज द बाइनरी 14। ओके, अब यानी कि बिन 14 का रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। देखिए, आइडियली के ऊपर करके देखते हैं। मैंने किया bin 14, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें बाइनरी नंबर भी साथ में उसका सिंबल भी रहेगा। सो बी बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है 0001, ये इसका बाइनरी कोड हो गया। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों की वर्किंग ट्रुथ टेबल की हम बात करें, सेम एक जैसी सी है। तो किस तरह से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर कैसे पता करेंगे वो तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। सही है, तो आपको सिंपली क्या करना है, bin फंक्शन यूज में लिया, bin के अंदर कोई भी एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया, उसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी कोड होगा वो आपके पास में आ जाएगा। बाइनरी कोड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, नाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर जो ये ऑपरेटर्स हैं, एंड और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और एंड द कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये इनकी ट्रूथ टेबल है आपकी। ओके, एंड ऑपरेटर में यदि ऑपरेंड 1 की बिट 0 है, ऑपरेंड 2 की बिट 0 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, यदि ऑपरेंड 1 0 है, ऑपरेंड 2 0 1 है तो 0, देन 0, देन इफ ऑल ऑपरेंड्स आर 1 इन दैट केस इट विल रिटर्न 1। ओके, सो इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे 14 है, 14 का जो बाइनरी डिजिट था हमारा वो क्या था, 1 1 1 0। अब सपोज दैट आपको क्या करना है, आपने किया 14 एंड 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिस्टम में करेंगे तो आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, सिस्टम में तो कैसे करना, सिंपल सिंपल वे है। आप करोगे क्या, 14
ये एंड ऑपरेटर हो गया 4, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। बट ये आया कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा एक वे है। एक तो ये ट्रूथ टेबल देखिए आप, अब 4 का भी बाइनरी नंबर निकालिए। 4 का बाइनरी नंबर क्या होगा भैया? 4 का बाइनरी नंबर होगा आपका ये है 1 2 4, ये 4 का आपका बाइनरी नंबर हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, एंड ऑपरेटर। तो इस ट्रूथ टेबल को देखिए, ये ऑपरेंड नंबर 1 हो गया, दोनों क्या है 0 0, तो 0 0 के केस में क्या रिटर्न करेगा? ये 0 रिटर्न करेगा, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। अब ये नेक्स्ट ऑपरेंड हो गया 1 और 0, तो ये 1 और 0 के केस में क्या रिटर्न करेगा? ये 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 1 और 1 के केस में क्या रिटर्न कर रहा है? 1, तो ये 1 आ गया। अब ये 1 और 0 के केस में, 1 और 0 के केस में 0, तो इसका रिजल्ट ये आया, बाइनरी नंबर में ये आया। और ये किसका नंबर है? ये 4 का नंबर है। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर को कन्वर्जन, ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर है। नंबर सिस्टम का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ओके, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या दिया इसने? 4 दिया। कैसे फाइंड आउट किया हमने, वो आइडिया लग गया होगा आपको, राइट? नाउ यदि हम और ऑपरेटर की बात करें, देखिए और ऑपरेटर में यदि दोनों ऑपरेंड 0 है तब तो ये 0 देगा, अदरवाइज कहीं भी 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए यदि हमने किया 14 और ऑपरेटर के लिए हम जो सिंबल यूज में लेते हैं वो आपका पाइप साइन होगा 4। तो इसने क्या रिटर्न किया है? 14 रिटर्न किया। कैसे आया वो देखिए। अब 14 कैसे आया? 14 का नंबर क्या है? 1 1 1 1 0, 4 का 1 0 0 0 0 क्या देगा? 0, ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा, तो ये किसका कोड है? 14 का कोड है, तो ये 14 कर देगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एक्सओर की, एक्सक्लूसिव और जिसको हम बोलते हैं। इस केस में क्या है? यदि दोनों ऑपरेंड है 0 तब तो ये 0 रिटर्न कर रहा है। 0 और 1 के केस में क्या रिटर्न करेगा? 1, 1 और 0 के केस में 1। अब यदि ये दोनों 1 है तो ये क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। ओके, देन बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर नोट ऑपरेटर की तरह से, यदि ऑपरेंड 0 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, 1 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको एक प्रोग्राम, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर का ये एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सो ए की वैल्यू इसमें क्या है? 9 है और बी की वैल्यू 12 है। तो बिन ए किया हुआ है, बिन ए का मतलब 9 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा? ये 9 का बाइनरी नंबर है, सही है। ये देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। ये 12 का बाइनरी नंबर है, 1 1 0 0, ये 12 का बाइनरी नंबर है। तो अब हमने किया ए एंड बी। एंड ऑपरेटर में क्या था? यदि सभी में 0 आएगा लेकिन ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों 1 है, उस केस में ये 1 देगा। तो यदि हम यहां पर देखते हैं तो 0 0 0 0 1 ये रिटर्न करेगा, करेक्ट है। और ये किसका नंबर हो गया? ये 8 का नंबर हो गया। ओके, देन ये देखिए यहां पर बिन ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका यही है ना 1 0 0 1 0 0, ये किसका नंबर है? बाइनरी नंबर 8 का, डेसिमल नंबर 8 का। अब हमने किया ए और बी। ए और ऑपरेटर में क्या था? कहीं भी 1 आ रहा है तो वही रिटर्न होगा। तो और ये तो हो गया एंड के केस में। और के केस में क्या होगा? 1 और 0 1 रिटर्न करेगा, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 1 1। तो ये किसका नंबर है? ये 13 का नंबर है, तो ये 13 करेगा। ओके, इस तरह से आप अपने इस आउटपुट, इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हो कि हमने किस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर्स को डेटा के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। BIN फंक्शन इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि बाइनरी नंबर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर है कौन सा। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, हमने किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? 9 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये -10 को रिटर्न करेगा। यदि आप चेक करना चाह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बाइनरी वैल्यू क्या है, तो ये देखिए बाइनरी वैल्यू आएगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट हो क्या है नंबर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में हम इतना ही कवर करेंगे। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर द बिटवाइज ऑपरेटर
we have the next and very important operator, that is identity operator. But before that, I want to ask the one thing. What is this? This is the equal to ऑपरेटर. ये क्या है? इक्वल टू ऑपरेटर है. ये इक्वल के लिए चेक करता है वेदर द ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट. करेक्ट है ये बात? देन एक और ऑपरेटर होता है ये वाला. ये क्या है? पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंबल एंड दिस सिंबल? सो ये क्या है? ये वैल्यूज को असाइन करने के लिए हम यूज में लेते हैं. इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, जनरली हम करते हैं A5. तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ 5 विल बी असाइन टू द वेरिएबल A. इसका मतलब क्या है? A 5 को रेफर कर रहा है. बट इफ आई राइट A इक्वल टू 5, it will check whether the value of A is 5 or not. It will return either true or false value and it will assign the value to the variable A. Okay. Now मैंने यहाँ पर ये क्यों लिया? आइडेंटिटी ऑपरेटर. ये क्या चेक करेगा? ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑपरेटर की जैसे ही है, बट ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है. इसका रिजल्ट कुछ और ही आएगा. ओके, कुछ केसेस में कुछ और आएगा, कुछ केसेस में करेक्ट भी आएगा. ओके, हमारे पास में दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है. एक तो इज ऑपरेटर है और एक नॉट इज. या तो है या फिर नहीं है. दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को चेक करने के लिए हम इज ऑपरेटर को यूज में लेते हैं. यदि दो वेरिएबल हैं, जैसे दो वेरिएबल का मीन्स, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसको मैंने 5 वैल्यू साइन करा दी. बी वेरिएबल लिया, इसको भी मैंने 5 वैल्यू साइन करवा दी. अब ये दोनों एक्चुअल में है क्या चीज? 5 एक मेमोरी लोकेशन है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है. सपोज दैट वो एड्रेस मैंने ले लिया, ये है. अब ए भी इस लोकेशन को रेफर कर रहा है, बी भी इस लोकेशन को रेफर कर रहा है. सो ए और बी दोनों एक ही चीज है. सो ए इज बी. यदि मैं ये लिखता हूं तो ये क्या देगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा. ये क्या करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ए और बी दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं. लेकिन यदि मैंने ए इक्वल टू 5 किया और ए बी इक्वल टू कर दिया 15, मैंने बी इक्वल टू कर दिया 15 और उसके बाद मैं करता हूं ए इज बी, तो ये क्या करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा. क्लियर है? ओके, सो सी, the is operator return true if both operands are pointing the same memory location, otherwise it will return false. Like in the above example, in this example, both variables are indicating the value 5, so it will return true. Otherwise, if both are referring different variable, different memory location, in that case it will return false. Okay. The is not operator return is not is just like opposite of the is operator. Okay. Here, see here, a equal to 100, b equal to 100. So if we use a is b, it will display true because both are referring the same memory location. Okay, I think it's very simple. समझ में आ गया होगा. Now, यदि आपको ये चेक करना है, कंफर्म करना है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, एक इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं हम. जैसे मैंने किया a, b इक्वल टू 100, 100 कर दिया. ओके, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा. यदि मैं करता हूं a इज b, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा. करेक्ट है. अब यदि आप ये चाह रहे हो कि मेरे को कंफर्म करना है कि a और b की आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, तो क्या करेंगे? आईडी ऑफ a कर सकते हैं हम. आईडी ऑफ a और आईडी ऑफ b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, दोनों की आईडी एग्जैक्टली सेम आएगी. यदि दोनों की आईडी सेम है तो इज ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा. यदि दोनों की आईडी डिफरेंट है, दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, तो डेफिनेटली इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा. दैट मीन्स यदि आप किसी भी वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, यदि वो दो वेरिएबल है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, दैट मीन्स the is operator will return true, otherwise it will return false. That false किस केस में रिटर्न करेगा? जब वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं होंगे. क्लियर है? कंफर्म करने के लिए हम आईडी यूज में ले सकते हैं. ठीक है. अब यहां पर देखिए, एक
छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे हम एग्जांपल कर चुके हैं। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 10 है। यदि आपने किया ए इज बी, सो ए और बी दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, सो मेमोरी लोकेशन रेफरिंग बाय ए और बी जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं वो उसका एड्रेस हमने डिस्प्ले करवा दिया है यहाँ पर, जिससे कि ये पता लग जाए कि एक्चुअल में ए और बी ये क्या करेगा, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब यदि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया, ए इज सी 100 और 10, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो दोनों की आईडी भी डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पर देखिए 576 ए और बी की मेमोरी लोकेशन हो गई, और ये 576 तो हो गई ए की मेमोरी लोकेशन, और 696 हो गई सी की लोकेशन। ओके, so if you want to check the objects are same, the variables are referring the same memory location, then we use is operator. ओके, अभी तक यदि हम देखें इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर की वर्किंग एक जैसी सी है, बट ये सभी केसेस में एक जैसी नहीं रहेगी। ओके, सो सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्वल टू ऑपरेटर एंड द इज ऑपरेटर, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इन दोनों में रिलेशन क्या है। काफी सारे केसेस ऐसे भी मिलेंगे हमें जहां पर इक्वल टू ऑपरेटर तो ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे हमने किया दो वेरिएबल हमारे पास में है a इक्वल टू बी, हमने किया ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट यदि हम करेंगे a इज b, उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। काफी सारे केसेस ऐसे आएंगे, ये स्पेशल केसेस हैं। कब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, कब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसके पीछे रीजन क्या है। अब यदि a और b की वैल्यू यदि इक्वल है, सपोज दैट a के पास में है 10.5 और b के पास में भी 10.5 है, तो डेफिनेटली ट्रू रिटर्न करेगा। बट ए इज बी किया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, अब उसकी बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। देखिए, इफ द इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, दैट मींस द इक्वल टू ऑपरेटर डेफिनेटली विल रिटर्न ट्रू, ये तो श्योर है। यदि इज ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया तो इक्वल टू ऑपरेटर तो देना ही देना ट्रू। लेकिन यदि इसके अपोजिट की बात करें तो ये हर केसेस में ये ओके नहीं होगा, हर एक केसेस में ये करेक्ट नहीं होगा। काफी सारे केसेस ऐसे आएंगे जहां पर ये इक्वल टू ऑपरेटर तो ट्रू रिटर्न करेगा, बट इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब वो केसेस क्या हैं और कौन कौन से क्या रीजन है उसके पीछे, देखिए। इफ वी राइट द फ्लोटिंग नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, यदि हम उनके बीच की कंपैरिजन की बात करें तो ये इज ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है, फ्लोटिंग वेरिएबल्स के लिए और फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमेशा पाइथन क्या करता है, एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। ओके, इसीलिए ये दोनों, अब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हुआ है, एक तो ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बी क्रिएट हुआ है। इसके पास में कोई डेटा है, इसके पास में कोई डेटा है, डेफिनेटली उन दोनों का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। इनकी वैल्यूज कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इनका जो एड्रेस है वो डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देता है, बट इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। यदि आपने बिग इंटीजर यूज में लिया है, मोर देन 4 और 5 डिजिट, जैसे एक नंबर आपने लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओके, और b इक्वल टू भी आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों हैं तो एक दूसरे के इक्वल, लेकिन ये बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। बड़ा ऑब्जेक्ट जब भी हम लेते हैं तो पाइथन हमेशा सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए इस केस में ये इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। इनपुट फ्रॉम द इनपुट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया s इक्वल टू abc, ओके। एक आप इनपुट के थ्रू ले रहे हो, एक इनपुट फंक्शन आपने लिया एंटर ए स्ट्रिंग, और इसके अंदर भी सपोज आपने abc एंटर कर दिया, ठीक है। तो दोनों का डेटा सेम है, ये s1 हमने लिया, ठीक है। देन यदि मैं करता हूं s इक्वल टू s1, तब तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यदि मैंने किया s इज s1, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि s नेम से एक ऑब्जेक्ट है जो किसको रेफर कर रहा है, वो abc को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब जब हमने कंसोल से इनपुट लिया ना, तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और इसका जो एड्रेस होगा और इसका एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल के साथ इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको कैसे होगा। नाउ फर्स्टली आई एम टेकिंग ए
string from the input, enter a string, so it will ask the value. So I am using abc here, small abc. Then I am taking one s1 string, exactly same data. Now if I write s1 equal to s, so it will return true because the content of s1 and s both are equal. But if I write s is s1, in that case it will return false. Why? The reason is, check out the id of s and s1, id of s1. Check out the address. See the last value. See the last value. At the last we have 600 and in the second one we have 528. So both address data is completely same, but when we use the string from the console and when we write any string, assign any string data to the string variable, in both cases the Python will create different object. Python ने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, एड्रेस डिफरेंट होगा. सो ये तीन स्पेशल केसेस हैं. इन केसेस में हमेशा इज ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. चाहे हम बात करें बिग इंटीजर्स की बात करते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोटिंग नंबर्स की बात करते हैं, और आपने कोई भी फ्लोटिंग नंबर कंसोल से लिया है, कोई भी स्ट्रिंग कंसोल से लिया है, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, वैल्यूज कॉमन थी, वैल्यूज सेम थी, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया. बट वैल्यूज देखिए, यदि हम s और s1 की वैल्यू की बात करें तो दोनों के पास में abc था, बट दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन असाइन है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है. ओके, सो आई थिंक मैं होपफुली समझ में आ गया होगा व्हाट इज द आईडी ऑपरेटर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इक्वल टू एंड द इज ऑपरेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑपरेटर्स. ओके, नाउ लेट्स चेक द अनदर एग्जांपल. अभी हमने जो किया ऑलमोस्ट उसी तरह का एग्जांपल है. a इक्वल टू 10.3 एंड b इज 10.3. बोथ आर द floating values. If a equal to b, it will return true, but a is b, both are the floating data. So for the float and complex data, different objects will be assigned. In that case, in a equal to b, it will return true, but a is b, it will return false. Check out the result, true and false. Why? Because see the id of a and b. Id of a is this, id of b is this. So memory address is completely changed. Now I have taken Ravi and name, and in the name too I am using console input. So it will return true and it will return false. We have covered it right now, true and false. So this is the memory address. See, 592 and 392 address is different. Clear? So let's see the next, that is membership operator. Membership operator, जो भी हमारे पास में सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास में लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, उसके अंदर किसी भी एक एलिमेंट को सर्च करता है, और ये यदि वो एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर कर देगा रिटर्न ट्रू. यदि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास में, इसी एग्जांपल स्क्रीनशॉट में ही देखते हैं. हमारे पास में एक स्ट्रिंग है हेलो फ्रेंड्स. इसके अंदर हमने क्या किया है, एफ आर आई इन स्ट्रिंग 1. क्या एफ आर आई है क्या इसमें, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है एफ आर आई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा. करेक्ट है. अब एक लिस्ट हमने लिया 12, 45, टॉम, स्मिथ, इसमें 54 को सर्च किया, 54 इन लिस्ट 1, तो ये क्या करेगा, नहीं मिला तो इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा. मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास में दो हैं, एक तो इन और नॉट इन. यदि मेंबर है उसके अंदर एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नॉट इन जस्ट इसके अपोजिट टास्क परफॉर्म करता है. ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स. नाउ हमने जो ऑपरेटर्स कवर किए हैं अभी तक, उनमें अभी हमने केवल ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है. देन इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सबसे पहले कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक के बाद में हमने किया था रिलेशनल ऑपरेटर.
रिलेशनल के बाद में लॉजिकल्स, देन बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इन सभी का हमने इंट्रोडक्शन देखा है आपके पेपर के अंदर इन द 11th एज वेल एज इन द 12th क्लास। कुछ एक्सप्रेशंस आएंगी और उन एक्सप्रेशंस को आपको एग्जीक्यूट करना है, पेपर के ऊपर अप्लाई करके देखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इस तरह से मिक्स आपके पास में एक्सप्रेशंस आएंगी, उनका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना होगा। 1 और 2 मार्क्स के अंदर आउटपुट फाइंड आउट करने वाले में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास में जो एक्सप्रेशंस आएंगी वो एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मोडमास रूल अप्लाई करते हो, लेकिन मैथ्स में हमारे पास में ज्यादा ऑपरेटर्स नहीं है, यहाँ पर तो हमारे पास में काफी सारे ऑपरेटर्स हैं। तो 1 बाय 1 इन ऑपरेटर्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, उन रूल्स की बात करते हैं। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जनरली आपके पास में कोई भी एक एक्सप्रेशन आती है, 5 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 3 मॉडुलस 4। ओके, ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में। तो इसमें सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? इसमें सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद में हम करेंगे इसको, उसके बाद में करेंगे प्लस को माइनस को। कैसे एग्जीक्यूट होगा ये? अब ये क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, 5 प्लस 9 4 जा 36 minus 3 modulus 4. Now the execute 3 modulus 4, the remainder will be 3 minus 36 plus 5. आई थिंक ये 3 मॉडुलस 4 का रिजल्ट 3 क्यों आया भाई, बता सकते हो? यदि मॉडुलस ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड में यदि लोअर वैल्यू तो हमेशा वही रिटर्न होगी। यदि हमारे पास में होता 4 मॉडुलस 3 तो इसका रिजल्ट क्या आता, 1 आता। ऐसा क्यों हुआ? हम 4 को डिवाइड करना चाह रहे हैं, 3 को 3 से डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो 1 टाइम डिवीजन हुआ। ओके, देन रिजल्ट क्या आया, 1, तो ये रिमाइंडर 1। अब यहां पर हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, डिवीजन पॉसिबल है नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसने 3 को रिटर्न कर दिया। यानी कि यदि मैं बात करूं 15 मॉडुलस 16 का, तो रिजल्ट क्या आएगा 15, जबकि 16 मॉडुलस 15 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1 ओनली। ओके, नाउ अब क्या आया, 5 प्लस 36 माइनस 3, सो 5 प्लस 36, राइट, then it is 38, तो रिजल्ट विल बी 38। तो इस एक्सप्रेशन में पहले मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, उसके बाद मैंने रिमाइंडर क्यों किया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद माइनस किया, तो इसके पीछे रीजन क्या है? ये रूल आप मैथमेटिक्स के अंदर भी अप्लाई करते हो। ओके, इफ वी सी इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स एंड उनमें से सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करता है एक रूल, और उस रूल को हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल। एक्चुअली में पाइथन ऑपरेटर्स की एक टेबल बनी हुई है पूरी, और उस टेबल में जो सबसे ऊपर आ रहा है उसकी हायर प्रायोरिटी है। और यदि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस अभी मैंने देखा इस एक्सप्रेशन में, इन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है। अब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर में क्या होगा, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो हमें हमारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करना है। क्यों? इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल। यदि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस पहले आ रहे हैं तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, उस केस में आप अपने एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करोगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, यदि मॉडुलस पहले आ रहा है तो पहले मॉडुलस कर दो। लेफ्ट टू राइट चलना है, इस रूल को हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल। ओके, सो देखिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में ये आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की टेबल बनी हुई है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है। ये क्या है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, पैरेंथेसिस जो आता है, यानी कि ब्रैकेट हैज हायर प्रेसिडेंसी, तो पैरेंथेसिस है वो सबसे हायर प्रेसिडेंसी अपने पास में रखते हैं, सबसे पहले आपको उसी को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद में आएगा एक्सपोनेंट, यदि पावर आ रही है, लेकिन पावर के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स एंड द यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर अप्लाई होंगे। ओके, उसके बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड
फ्लोर डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर है, इन चारों की प्रायोरिटी है वो बिल्कुल इक्वल होती है। तो इसमें ऑपरेटर एसोसिएटिव रूल लगेगा, आपकी एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस एंड माइनस हैज लोअर प्रायोरिटी देन द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर आ गए, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की टेबल है। ये जब भी आप एक्सप्रेशंस के आउटपुट फाइंड आउट करोगे उस टाइम आपको ये ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर द ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर एसोसिएटिव वर्ड यूज में ले रहा हूँ। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वर्ड का मीनिंग क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ये आपका जो एक्सप्रेशन है, जो उसमें ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनकी हायरार्की तो इसने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। बट बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे सेम प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है, उसमें सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एक ही एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। मल्टीप्लिकेशन आ गया, मॉडुलस आ गया, डिवीजन आ गया, फ्लोर डिवीजन आ गया, ये सारे ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आ गए। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? उस केस में ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल आता है और वो ये बताता है कि आपको ऐसी एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। बट जो पावर है, एक्सपोनेंट सिंबल है, इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेशंस के आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशंस को सोल्व कैसे करना है। ये तो सारी रूल्स की बात होगी, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है। आपकी बुक के चैप्टर के लास्ट में काफी सारी एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें कि आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एक्सप्रेशंस के, ठीक है। ये हमें सोल्व करना होगा क्योंकि जब पेपर होगा तो हमारे सामने सिस्टम नहीं रहेगा। उस केस में हमें एक्सप्रेशंस को कैसे सोल्व करना है वो आना जरूरी है। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कोड स्पेसिफाई किया हुआ है और आपको इस कोड का रिजल्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। जिसमें मैंने क्या किया है, ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हैं जिसके पास में 10, 10 और 20 है। डी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया तो डी के पास में भी क्या जाएगा, डी के पास में ए प्लस बी किया हुआ है तो डी के पास में भी 20 आ जाएगा। देन ई एफ जी 10.0, 10.0, 20.0, जितने भी वेरिएबल्स है इन सभी को एक पेपर के ऊपर नोट कर लीजिए। उसके बाद में इन एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 20.0 आ जाएगा। देखिए लॉजिकल है काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें इज ऑपरेटर यूज में लिया हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर यूज में लिया। अभी हमने देखा था कि इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या सिमिलरिटीज हैं। ओके, सो इसका जो रिजल्ट सी इक्वल टू डी इसने किया हुआ है, सी इक्वल टू डी, सी की वैल्यू कितनी है 20 है, डी की वैल्यू कितनी है 20 है। दोनों इंटीजर डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हो आराम से कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इस एक्सप्रेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इसका आउटपुट क्या होगा उसको फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका रिजल्ट बता रहा हूँ। देखिए रिजल्ट ट्रू, सबसे पहला क्यों आया ट्रू? अभी मैं बात ही कर रहा था 20 और 20 है तो ट्रू आएगा। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होना, तो ये क्या करेगा, ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें और इसका आउटपुट खुद फाइंड आउट करने की ट्राई करें। ये स्क्रीन के अंदर आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, बट बेटर तो ये है कि आप इसको खुद एग्जीक्यूट करके देखें। चलो एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैं बता देता हूँ। ये इसका रिजल्ट आ कैसे रहा है, बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। आपके बुक के पीछे काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और बाकी और क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब भी आपको जरूरत होगी। देन इवन हम पेपर्स के, जब हम पेपर्स को सोल्व करेंगे और जितने भी पॉसिबल ओटीक्यूज हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं। उसके ऊपर, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए सी और डी। सी क्या था, देखिए जितने भी वेरिएबल्स आपके पास में उन सभी को एक साइड, एक रफ पेज के ऊपर नोट कर लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये हमने इतने सारे वेरिएबल यूज में ले रखे हैं। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 10.0, 10.0, 20.0 और एच की वैल्यू 20.0। ओके,
C equal to D. C is 20 and D is 20. So C equal to D, condition will return true, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. C is D, C और D की वैल्यू 20 और 20 है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा. SEP के अंदर हमने स्लैश एन यूज में लिया है, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न करेगा. ओके, सो ये ट्रू और ये ट्रू आ गया. अब नेक्स्ट में देखिए G और H. G की वैल्यू कितनी है 20.0, H की वैल्यू कितनी है 20.0. तो दोनों की वैल्यूज इक्वल है. 20.0 equal to 20.0, but both are the float data, so it will return true. But if you use 20.0 is 20.0 both, then in that case it will return false because this is the floating data. रूल्स के अंदर था ये, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट नंबर के साथ में यदि हमने इस ऑपरेटर यूज में लिया, यदि वैल्यू सेम है बट एड्रेस उसका डिफरेंट रहेगा, तो इसमें क्या होगा, ये ट्रू देगा और ये फॉल्स देगा. सेपरेटर स्लैश है तो न्यू लाइन में आएगा, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा. अब देखिए वन और नन, और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है. तो ये तो होगी ट्रूथ वैल्यू और ये होगी फॉल्स वैल्यू. तो ये क्या रिटर्न करता है, वन और नन. उसके बाद में आ गया एंड ऑपरेटर, ए और बी. ठीक है. अब इसमें देखिए आपको और ऑपरेटर की वर्किंग पता होनी चाहिए, एंड ऑपरेटर की वर्किंग पता होनी चाहिए. और सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए, ए और नन को. ए और नन का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. एंड ए और बी का रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा. अब एंड ऑपरेटर के अंदर यदि पहली वैल्यू आपको ट्रूथ वैल्यू मिल रही है, सेकंड वैल्यू भी ट्रूथ वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा. 1 रिटर्न हो गया. ओके, नेक्स्ट में देखिए लेन ऑफ फेलो इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5. लेन ऑफ फेलो मीन्स इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5. सो 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5. ओके, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5.0. इसके बाद में यहां पर क्या आ गया, और इक्वल टू क्या है 20 डिवाइड बाई 10. क्या आएगा इसका रिजल्ट, 20 डिवाइड बाई 10 का 2 आ गया. ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. ट्रू और 2, तो क्या रिटर्न कर देगा ये, ट्रू. ट्रू आ गया. ठीक है. नेक्स्ट में देखिए 30 लेस देन 50. 30 इज लेस देन 50, कंडीशन इज ट्रू. देन और ऑपरेटर है 50. 50 डिवाइड बाई व्हाट, ब्रैकेट ले रखा है, तो 5 माइनस ब्रैकेट में है 3 प्लस 2. ये क्या हो गया 5. 5 माइनस 5 क्या हो गया 0. 0. 50 डिवाइड बाई 0, ये एक एक्सेप्शन हो गई ना. बट ये क्या है, और ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है. तो जब और ऑपरेटर के अंदर हमारे को पहले वाली कंडीशन यदि ट्रू मिलती है, क्या था, तो हमेशा वो पहले वाली एक्सप्रेशन को ही चेक करेगा, दूसरे वाली के ऊपर तो जाएगा ही नहीं. तो ये क्या है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है. तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये इसी को ट्रू रिटर्न कर देगा. करेक्ट है. अब देखिए बुलियन 1 क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है. बुलियन 0 क्या है, फॉल्स वैल्यू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. बुलियन एम्पटी है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. बुलियन 0, 0 सिंगल कोट्स में है, यानी कि एक स्ट्रिंग डेटा है, डेटा है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दिस इज द रिजल्ट. एंड बुलियन str0, ये क्या है, पहले तो इस जीरो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और वो बुलियन के इनपुट में जा रहा है, तो यही चीज यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा. इस तरह से आपको हर एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अनदर एग्जांपल. ओके, सो टेक दिस and try to find out what is the value of D और E. कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देखिए. A, B और C. A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू 10 है. एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, D इक्वल टू A मॉड्यूलस B. A की वैल्यू क्या है 5, मॉड्यूलस में B की वैल्यू है 7,
इंटू सी, सी की वैल्यू है 10। 10 के बाद में इंटीजर डिवीजन आ गया बी, बी क्या है 7। देन एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ए, ए की वैल्यू कितनी है 5। ओके, देन after that we have we have प्लस में b, b is 7 minus 10 and after that we have a, a is 5। ओके, नाउ अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा आपका 7 पावर 5। रीजन, बिकॉज the exponent has higher priority than the all the other operators, right ना। so सबसे पहले आपको क्या करना है 7 पावर 5 फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले 7 पावर 5 करना होगा। सो द 7 पावर 5 के लिए हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 16,807। ओके, अब इसको हमने सोल्व कर दिया, बाकी एक्सप्रेशन को आप एज इट इज नोट कर दो एक बार के लिए। इंटू 10 इंटीजर डिवीजन प्लस 7 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है आपको। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें हायर प्रेसिडेंसी देखिए, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर डिवीजन, ठीक है ना, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। देन डिवीजन, दिस ऑपरेटर हैज हायर प्रायोरिटी देन द प्लस एंड माइनस। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में जितने भी ये ऑपरेटर आ रहे हैं, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर, फ्लोर डिवीजन, इन सभी को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या, ऑपरेटर सोसाइटी रूल फॉलो करेंगे तो 5 मॉडुलस 7 को सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 मॉडुलस 7 का रिजल्ट 5 आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर की वर्किंग बता चुका हूं मैं। अब इसको इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब 50 यहां पर फ्लोर डिवीजन है और काफी बड़ा नंबर है तो, और हमें डेसिमल में जाना नहीं है तो क्या करेगा ये, इसका रिजल्ट 0 देगा। 0 प्लस 7 माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो द रिजल्ट विल बी 5। और यहां पर ये एक चीज देखने लायक है, ये क्या है, ये है हमारा डिवीजन। सो इसका जो रिजल्ट आएगा ना 2.0 आएगा और इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 5.0 आएगा। 5 एंड 5.0 दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया पाइथन के अकॉर्डिंग। ये इंटीजर 5 और ये 5.0 फ्लोट डेटा है। ओके, सो यदि हम डी की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी 5.0 आएगी। ओके, इसी तरह से आपको अपनी इस एक्सप्रेशन को भी सोल्व करना है, सेम वे इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आप करोगे। ठीक है, नाउ इट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटर एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द डेटा हैंडलिंग इन पाइथन। ये जो आपकी 11th क्लास के अंदर जो चैप्टर है सीएस के अंदर डेटा हैंडलिंग एंड आईपी के अंदर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वो यहाँ तक कवर हो रहा है। और यहाँ तक कवर, इसको हमने कवर किया था क्या, कौन कौन से हमने टॉपिक्स कवर किए थे। हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को करेक्टर सेट से। करेक्टर सेट के बाद हमने टोकन्स को कवर किया। देन हमने वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। आफ्टर द वेरिएबल वी हैव कवर्ड डेटा टाइप्स, देन द ऑपरेटर्स, एंड इस ऑपरेटर में भी काफी लेंथी टॉपिक है ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड ऑपरेटर एसोसिएटिव रूल्स देखे थे। देन किस तरह से हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज में लेना है, कैसे हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज में लेना है, और किस तरह से हमें इस एक्सप्रेशन का, इस टाइप के एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। अभी इस टाइप के एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको काफी सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको और भी काफी सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी बुक्स है जो एनसीईआरटी की बुक है और जो सुमित्रा अरोड़ा बुक है उसके अंदर भी काफी सारी ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी। और ओटीक्यू के ऊपर मैं क्वेश्चंस और भी डालने वाला हूँ, और भी वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, तो उनसे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो इट्स over now. Okay, the chapter is completed. Now we will begin the next chapter. Okay, with the new video. Now that's all from my side. Thanks for watching. Please like the video, subscribe the channel if you haven't subscribed it. Okay, thank you very much.